रियासती वजीर पवन गोलेटी सरियानिवास रेड्डी ने शहरियों के जायदाद से मुताल्लिक अहम मसाइल पर एक बड़ा और सरी बयान जारी किया है। उन्होंने एतराफ़ किया कि कुछ शहरियों की कानून के मुताबिक और सख्त मेहनत से खरीदी गई जायदादें भी 22A की ममनुआ फहरिस्त में शामिल हो गई है। वजीर मौसूफ ने वजाहत की कि इस तकनीकी गलती और गलत इंदराज की वजह से आम शहरियों को शदीद परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतासरा शहरियों को तसल्ली देते हुए कहा कि हुकूमत इस नाइंसाफ़ी और गलती को दूर करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर किसी शहरी की जायज़ जायदाद इस फहरिस्त में शामिल है तो वो फौरी तौर पर दी गई मुफ्त हेल्पलाइन पर राब्ता करे। उन्होंने अवाम के लिए मुफ्त फ़ोन नंबर 1805994788 का बाज़ाब्ता इजरा किया है ताकि शिकायत दर्ज करवाई जा सके। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मौसूल होने वाली तमाम शिकायतों की फौरी तफ्तीश करके जायज़ जायदादों को फहरिस्त से बाहर निकाला जाएगा। इस अक़दाम का बुनियादी मकसद अवाम के मसाइल का फौरी अज़ाला करना और ज़मीन के इंदराज के निज़ाम को शफ़ाफ़ और आसान बनाना है। 18005 टोल फ्री नंबर अंडी 18005 994788 మళ్ళా రిపీట్ చేస్తున్నాను 18005 994788 ఇది టోల్ ఫ్రీ నెంబరు। ఎవరైతే న్యాయబద్ధంగా వారి కష్టార్జితంతో సంపాదించుకున్న ఆస్తులు ఉన్నాయో, నేను కూడా చూశాను, కొంతమంది మీడియా మిత్రులు చెప్పి రాసిన దాన్ని చూశాను। ఒక చిరు ఉద్యోగి 100 గజాలు 110 గజాలు దాని రిజిస్ట్రేషన్కి నేను ఏదో ట్రాన్సాక్షన్ కోసం అమ్ముకోవటానికి పోతే నా ప్రాపర్టీ నిషేధిత జాబితాలో ఉందని, పాపం తను అనే దాంట్లో న్యాయం ఉంది। ఎందుకంటే తను 6 కాలం కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఆ ప్రాపర్టీలో తను పూర్తి సర్వాక్కులో ఉన్నా అనుకున్న టైంలో ప్రభుత్వం దాని నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నదన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా తను పానిక్ పోయే దాంట్లో అర్థం ఉంది। అటువంటి పరిస్థితి భవిష్యత్తులో ఉండొద్దని ఎవ్రీ వీక్ ఈ ఉన్నతాధికారుల కమిటీ సమీక్షిస్తుంటది। టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లో కంప్లైంట్ స్వీకరిస్తుంటాం, రిటర్న్ పూర్వకంగా మీరిచ్చే కంప్లైంట్లు స్వీకరిస్తుంటాం। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम से मुताल्लिक पैदा होने वाले मसले पर अहम वजाहत जारी की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही इंतजामी अफसरान की है या कानून साजी के शोबे की, इसकी तफसीली जांच की जा रही है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि स्कीम के नफाज में गलती कहाँ हुई और किस सतह पर कोताही बरती गई। वजीर मौसूफ ने वाज़े किया कि तहकीकाती रिपोर्ट सामने आते ही जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त और बाज़ाब्ता इक़दाम किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसी भी लापरवाह या कसूरवार शख्स को मुआफ़ नहीं किया जाएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। हुकूमत की तरजीह है कि तमाम मुस्तहक़ीन को बग़ैर किसी रुकावट या ताख़ीर के स्कीम के फ़वाइद हासिल हों। इस बयान के बाद इंतज़ामी ऐवानों और मुताल्लिक़ा महकमों में हलचल मच गई है और रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। अवामी हलकों ने तवक्को जाहिर की है कि शफाफ तहक़ीक़ात के जरिए इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। అందుకే చెప్పిన ప్రభుత్వం తరఫున న్యాయపరంగా జాప్యం జరిగిందా, అధికారుల సమాచార పరంగా జరిగిందా, దాని మీద విచారణకు ఆదేశిస్తా ఉన్నాం। ఇందుకు సంబంధించిన బాధ్యుల మీద చర్య తీసుకుంటాం। తెలుసు దానికి సంబంధించి, అందుకే నేనేమంటున్నా, దానికి సంబంధించి అందుకే అవన్నీ గురించి నేను న్యాయ స్థానంలో ఉంది కాబట్టి అంత డీటెయిల్ గా నేను పోవట్లే। కానీ నేను ముందు మీకు చెప్పినప్పుడు మీరు చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన, మా అధికారులు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కు సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ లేదా న్యాయపరంగా ఈ శాఖలను సమన్వయం చేయాల్సినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి బాధ్యులు కానీ ఎవరి లోపం అనేది గౌరవ ప్రభుత్వం తరఫున దాన్ని విచారణ చేసి అందుకు బాధ్యులైన మీద చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా। దానికి అరే నేను విచారణకు ఆదేశించాలని ఇప్పుడు నాకు ఓకేనైనా తప్పకుండా రెస్పాన్స్ బాధ్యతగా దాని మీద వ్యవహరిస్తాము।
నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ నేను అదే చెప్తా ఉన్నా కదా, నేను అనే మాట మీరు అర్థం చేసుకుంటలేరు. నేను 100% దాని మీద వెరీ సీరియస్. గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్. ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఉంది. అరే నేను అందుకే 4 సార్లు అవకాశం ఇచ్చిర్రా, 5 సార్లు అవకాశం ఇచ్చిర్రా. కౌంటర్ ఫైల్ చేయకపోవడానికి గల కారణం న్యాయవాదుల తప్ప, అధికారుల తప్ప. తెలిసిన తర్వాత యాక్షన్ తీసుకోకపోతే యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. रियासती प्लानिंग कमीशन के नायब चेयरमैन और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जी चना रेड्डी ने अपनी ही पार्टी की क़यादत के खिलाफ इंतहाई सनसनीखेज और संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने वनपर्ती के मौजूदा कानून साज असेंबली रुकन मेघा रेड्डी और पार्टी की आला क़यादत को निशाना बनाते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने अजह किया कि पार्टी की मरकजी रहनुमा सोनिया गांधी ने उनकी नामजदगी की मंजूरी दी थी और मुतल्लिका क़यादत को हिदायत दी थी कि वो उनकी इंतखाबी मुहिम में मदद करें, लेकिन इसके बरक्स पैसा लेकर टिकट बेचा गया और मेघा रेड्डी को नामजदगी फराहम कर दी गई। चना रेड्डी ने इंतबा दिया कि अगर उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया गया तो वो भी सीनियर रहनुमा जीवन रेड्डी की तरह बगावत का रास्ता इख्तियार करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इस धमाकेदार बयान के बाद पार्टी के अंदरूनी हलकों और सियासी ऐवानों में ज़बरदस्त खुलबल और तनाज़ो पैदा हो गया है। अपोजिशन जमातों ने इस बयान को बुनियाद बनाकर हुक्मरां जमात पर माली बेज़ाब्तगियों और रिश्वतखोरी के शदीद हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के अंदरूनी इत्तेहाद और टिकट की तकसीम के निज़ाम पर इस बयान से गहरे सवालात खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी జెండా పట్టనటువంటి వ్యక్తిని ఇచ్చిన గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి 10 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంటే ఆ పార్టీలో పోయి అన్ని సంపాదించుకుని మళ్ళా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చినారు. ఇదా కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇదా రాజకీయం. గన్పూర్ కూడా అదే మాట జరిగింది. ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్నా మేము భరించి ఊరుకుంటున్నాం. నేను భరించకుంటే ఇంకో జీవన్ రెడ్డి కావాల్సి వస్తుంది. నేను భరించకుంటే ఇంకో జీవన్ రెడ్డి కావాల్సి వస్తుంది. తప్పులు చేస్తున్నా ఈ తప్పుడు గాళ్లను పార్టీ నుంచి బయటకు వదిలేంత వరకు మేము వదలమనేటువంటి మాట కూడా మేము మనం చేస్తాము. అందుకని ఎంతకాలం సాగదు ఇది. ఇవాళ టికెట్ పొందిన వ్యక్తితో డబ్బులకు ఆశపడి నా టికెట్ ను పక్కకు పెట్టారనేటువంటి మాట కూడా మీతో మనం చేస్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి గారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గా పోయి చెప్పా, అన్నా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుంది, మీరు ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారన్న మాట కూడా నేను చెప్పా. ఆ మాట మరి నేనంత నిర్భయంగా వారే ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పిన తర్వాత ఇంక భయమే ఉంది చెప్పండి. ఆ ప్రకారంగా నేను చెప్పిన తర్వాత కూడా కొంత డబ్బులకు ఆశపడి నా టికెట్ కోశారు. ఇలా నా 45 సంవత్సరాలు నిర్మాణం చేసుకున్న రాజకీయ జీవితాన్ని चनूर कस्बे में भारत राष्ट्र समिति के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया है। अपोजिशन जमात का इल्जाम है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत आला अदालत में जवाब दाखिल न करके कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अवामी मुफाद की स्कीमों को जारी रखने का मुतालबा किया। सूरतहाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने एहतजाज को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर नाकाबंदी और अहलकारों की तैनाती की। पुलिस ने धरने को नाकाम बनाने के लिए अहम रहनुमाओं और मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में जबरदस्त कशीदगी और अपोजिशन कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया। सियासी जमात के रहनुमाओं ने पुलिस की इस कार्रवाई को जमहूरियत के खिलाफ और अवामी आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया। इस वाक़ये के बाद कस्बे में सियासी दर्जा हरारत इंतहाई बुलंद हो गया है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है।
साबिक वजीर और सीनियर रहनुमा इराबेली दियाकर राव ने खुश्क नहरों के साथ एक एहतजाजी पैदल मार्च का आगाज किया है। उन्होंने वरंगल जिला के मीलरम से पालाकर्ती हल्के की हुदूद तक SRSP नहरों के साथ साथ पैदल सफर किया। इस सफर के दौरान उन्होंने नहरों में पानी की अदम फराहमी के बाइस मुकम्मल तौर पर सूख चुकी फसलों का मुआयना किया। उन्होंने किसानों की अबतर हालत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। सीनियर रहनुमा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों को माशी तबाही से बचाने के लिए नहरों में फौरन पानी छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि पानी की शदीद किल्लत की वजह से किसानों की महीनों की मेहनत और बड़ी लागत मुकम्मल बर्बाद हो चुकी है। इस पैदल मार्च के दौरान बड़ी तादाद में मकामी किसानों और हामियों ने शिरकत करके अपने शदीद गुस्से का इजहार किया। दियाकर राव ने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत ने किसानों को फौरी राहत न पहुंचाई तो इस एहतजाज को मजीद वसी और शदीद बनाया जाएगा। 24 గంటల కరెంటు 24 గంటల కరెంటు అందించాలి 24 గంటల కరెంటు అందించాలి జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి కాలనీలు వెంటనే వర్ధిల్లాలి కాలనీలు వెంటనే వర్ధిల్లాలి జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ ఒక వారం రోజులు పోతే గతం అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు పెట్టుబడి దీనికి 50-60 వేలు అయింది సార్ ఇప్పటికే 50-60 मरूफ डांस कोरियोग्राफर श्रेष्ठ वर्मा ने बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रियासत में पार्टी के दफातर में मुनक़दा एक खास तकरीब में उन्होंने बीजेपी का परचम थामा। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने उनका पार्टी में पुरजोश खैरमकदम किया और रिवायती खंडवा पहनाकर मुबारकबाद दी। तकरीब के दौरान पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा और बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे। श्रेष्ठ वर्मा ने कहा कि वो पार्टी के नज़रियात और अवाम की खिदमत के जज्बे से मुतासिर होकर इस सफ़र का हिस्सा बनी है। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि वो रियासत में पार्टी के पैगाम को आम करने और अवामी फलाह के लिए काम करेंगी। पार्टी क़यादत ने उम्मीद जाहिर की है कि कोरियोग्राफर की शमूलियत से नौजवानों और फनकार बरादरी में बीजेपी का असर और रसूख मज़ीद मजबूत होगा। बीजेपी के रहनुमाओं का मानना है कि मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात की आमद पार्टी की मकबूलियत का वाज़े सबूत है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने रात के औकात में बिलावजा सड़कों पर घूमने वाले अफराद के खिलाफ अपनी खुसूसी मुहिम को मजीद तेज कर दिया है। इस सिलसिले में रेन बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में देर गए जबरदस्त तलाशी और जांच पड़ताल की कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस एहलकारों ने देर रात सड़कों और चौराहों पर बिला मकसद घूमने वाले नौजवानों को हिरासत में लेकर उनकी तफसीली जांच की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नौजवानों की बाज़ाब्ता काउंसलिंग की और उन्हें आइंदा इस तरह बिलावजा घूमने से सख्त खबरदार किया। हुक्काम ने वाज़े किया कि रात के वक्त बिला ज़रूरत घूमना और किसी भी किस्म की शरारत अमन व अमान के मसाइल का सबब बन सकती है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद शहर में पुरअमन माहौल कायम रखना, मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखना और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। पुलिस के आला अफसरान ने कहा कि अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। पुलिस ने वालिदैन से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों की देर रात की सरगर्मियों पर नज़र रखें और उन्हें बेमकसद बाहर निकलने से रोकें।
घर में कोई भी नहीं है सर, घर में कोई भी नहीं है सर। भाई हमारे वालिद साहब वालिद साहब नहीं है जी, इसलिए एक बात वाली मम्मी से बात करो। अरे वाली मम्मी को मम्मी से बात करना काम पे सब भाई बोलो ना जब भी काम पे सर। विकरी आबाद जिला के तांदूर में वाक़े एक सरकारी रिहायशी स्कूल में हरासा करने और तशद्दुद का एक खौफनाक वाक़या सामने आया है। 8वीं जमात के एक तालिब इल्म साई बालाजी ने खाने के वक्त एक इजाफी रोटी मांगी, जिस पर तनाज़ो खड़ा हो गया। 9वीं जमात के सीनियर तलबा ने इस मामूली बात पर तैश में आकर साई बालाजी को गर्म तवा लगाकर बुरी तरह जला दिया। इस अलमनाक वाक़ये का इल्म होते ही कई तलबा के वालिदैन पुलिस के साथ फौरी तौर पर स्कूल की इमारत पहुंच गए। ताहम स्कूल के अमले ने पुलिस और वालिदैन को काफ़ी देर तक रिहायशी इहाते के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। गुस्से से भरे वालिदैन ने स्कूल इंतज़ामिया की इस शदीद लापरवाही और गफलत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल ने अपना दिफा करते हुए दावा किया कि मुतासरा तालिब इल्म अक्सर दूसरों के साथ झगड़ा करता था और उसने पहले भी इस सिलसिले में तहरीरी मुआफ़ी नामा दिया था। इस वाक़ये ने रिहायशी स्कूलों में ज़ेर तालीम मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और वहाँ के माहौल पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। करनोल के सरकारी हस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने अपने मुतालबात की मंजूरी और दरपेश मसाइल के हल के लिए खिदमात का बाइकॉट करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाजी डॉक्टरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करके दरपेश मसाइल का पायदार हल निकाला जाए। जूनियर डॉक्टरों ने हस्पताल के तमाम शुबों और इंतहाई अहम इमरजेंसी खिदमात का बाइकॉट करके हस्पताल के उमूर को ठप कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने बैरूनी मरीजों के लिए ओपी खिदमात को भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जिससे हस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज इलाकों से उनके इलाज और मुआयना के लिए पहुंचने वाले 100 से ज़ायद गरीब मरीजों और उनके तीमारदारों को शदीद परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बार बार मुतवज्जे करने के बावजूद इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से उनकी मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने वाज़े इंतबा दिया है कि जब तक उनके मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता, उनका ये एहतजाज और बाइकॉट जारी रहेगा। हस्पताल इंतज़ामिया और मुताल्लिका हुक्काम ने मुज़ाहिरीन के साथ बातचीत करके मुअत्तल खिदमात को दोबारा बहाल करने और सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू कर दी है। कितने दिन तो आ रहे थे? मिनट है वीडियो बचो। कहीं भी जा रहे हैं उधर कैसे ना होगा। आंध्र प्रदेश के मुनीम जिला के सालूर में वाक़े एक सरकारी हाई स्कूल की दीवार गिरने से एक दर्दनाक हादसा पेश आया है।
इस नागहानी हादसे में 10वीं जमात के एक तालिब इल्म अरविंद तीजा की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के दौरान एक और तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब तलबा खेल कूद के लिए स्कूल के मैदान में गए थे और इस पुरानी दीवार पर बैठे थे। दीवार इंतहाई बोसीदा और पुरानी होने की वजह से उनका बोझ बर्दाश्त न कर सकी और अचानक डे गई। इस अलमनाक हादसे के बाद स्कूल इंतजामिया और मुताल्लिका महकमे की शदीद गफलत पर वालिदैन और मकामी लोगों में जबरदस्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम पुरानी स्कूल की इमारतों की फौरी मुरम्मत की जाए ताकि ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात दोबारा न हों। सदीपेट जिला के हुस्नाबाद कस्बे के हनुमान नगर इलाके में एक दिलसोज और लर्जा खेज कत्ल का वाकया पेश आया है। कमर्शियल टैक्स दफ्तर में मुलाजिम वेंकटेशम इसी माह अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश होने वाले थे। उनकी ज़ौजा राजमानी, जो एक सरकारी तिब्बी कारकुन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, ने जायदाद और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम की तकसीम पर उनसे शदीद बहस व तकरार की। माली तनाज़ो और जायदाद की तकसीम पर जारी ये लड़ाई अचानक इंतहाई हौलनाक और पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गई। गुस्से में आकर राजमानी ने लकड़ी के भारी दस्ते से अपने शौहर के सर पर बार बार शदीद वार किए। इस खुनरेज हमले के नतीजे में वेंकटेशम शदीद जख्मी होकर मौके पर ही दम तोड़ गए। वाकये के फौरन बाद मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस की टीम ने पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। पुलिस ने मुल्जिमा के खिलाफ कत्ल का बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया है और मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घरेलू तनाज़ो और कत्ल की दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे कस्बे में शदीद हैरत और सनसनी फैला दी है। हैदराबाद के बालापुर के इलाके बिस्म अल्लाह कॉलोनी में एक दर्दनाक और लर्जा खेज कत्ल का वाकया सामने आया है, जहां मोहम्मद सलाम नामी शख्स ने अपनी महबूबा रेहाना का बेरहमी से चाकू मार कर कत्ल कर दिया। दोनों का ताल्लुक रियासत बिहार से था और वो तवील अरसे से एक दूसरे को जानते और मोहब्बत करते थे। खातून की जानिब से मुसलसल शादी के लिए दबाव डालने पर मुल्जिम ने तैश में आकर यह खौफनाक कदम उठाया। कत्ल करने के बाद मुल्जिम ने लाश को एक बोरी में बंद करके मौका से फरार होने की कोशिश की। मकामी लोगों को शक होने पर पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश तहवील में ले ली। पुलिस ने इस हौलनाक वारदात का मुकदमा दर्ज करके फरार मुल्जिम की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है। इलाके में इस खौफनाक कत्ल के बाद शदीद सनसनी और खौफ व हरास का माहौल फैल गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुल्जिम को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलाई जाएगी। नागरकुर्नूल जिला में हैदराबाद और श्री सीलिम की अहम शाहरा पर एक अलमनाक और दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक चीते की मौके पर ही मौत हो गई है। शाहरा से गुजरने वाले मकामी मुसाफिरों ने सड़क के किनारे चीते की लाश देखकर फौरी तौर पर महकमा जंगलात के हुक्काम को इत्तला दी। जंगलाती इलाके के करीब तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने और लापरवाही की वजह से ये बेज़बान जंगली जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के अफसरान और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हादसे के मकाम का तफसीली मुआयना किया। पुलिस ने हादसे के बाद फरार होने वाली नामालूम गाड़ी और उसके ड्राइवर की तलाश के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जंगलात के हुक्काम ने जानवर की लाश को तहवील में लेकर कानूनी ज़वाबित के तहत आगे के मराहिल मुकम्मल कर लिए हैं। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये ने शाहराहों पर जंगली हयात की हिफाजत और गाड़ियों की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत को उजागर कर दिया है। आंध्र प्रदेश के मुनीम जिला के सालूर में वाक़े एक सरकारी स्कूल की पुरानी दीवार गिरने से 15 साला तालिब इल्म अरविंद तीजा की अलमनाक मौत हो गई है। इस नागहानी वाक़ये ने पूरे इलाके को शदीद गम और सदमे की लहर में डुबो दिया है। 10वीं जमात के इस होनहार तालिब इल्म की अचानक मौत की खबर मिलते ही इसके खानदान और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद स्कूल पहुंच गई। अपने मासूम बेटे की बेजान लाश को देखकर वालिदैन जार ओ कतार रोते रहे, जिससे वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। मकामी लोगों और रिश्तेदारों ने स्कूल इंतजामिया पर शदीद गफलत और लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए गहरे गम और गुस्से का इजहार किया है।
ان کا کہنا ہے کہ اسکول کی عمارت اور دیوار کی ابتر حالت کے بارے میں پہلے بھی نشاندہی کی گئی تھی مگر کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے حادثے کی جگہ پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور لواحقین کو انصاف کی یقین دہانی کروائی۔ اس دل دہلا دینے والے حادثے نے تعلیمی اداروں کی عمارتوں کی حفاظت اور دیکھ بھال پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے مشہور اور مقدس اجین مہاکالیشور مندر میں ایک خوفناک اور ناگہانی بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ناگ پنچمی کے مقدس موقع پر مہاکالیشور جیوترلنگ کے درشن اور ناگ چندریشور مندر کے سالانہ افتتاح کے لیے عقیدت مندوں کی زبردست بھیڑ جمع تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں زائرین مندر کے باہر لمبی قطاروں میں کھڑے اپنی باری کا صبر و تحمل سے انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران پولیس کے لگائے گئے رکاوٹوں میں بجلی کا کرنٹ آنے کی ایک جھوٹی اور غلط افواہ اچانک پھیل گئی۔ اس بے بنیاد افواہ کے پھیلتے ہی قطاروں میں موجود لوگوں میں شدید خوف و ہراس اور افراتفری مچ گئی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے جس کے نتیجے میں زبردست بھگدڑ مچ گئی اور 13 عقیدت مند زخمی ہو گئے۔ پولیس اور مندر انتظامیہ نے فوری طور پر حالات پر قابو پایا اور تمام زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔ حکام نے جھوٹی افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے اور لوگوں سے سکون برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر کہاں نکلو گے؟ ادھر کہاں نکلو گے بھیا؟ صدی پیٹ ضلع کے مدور میں واقع کستوربا گاندھی بالیکا اسکول میں زہریلا کھانا کھانے کا ایک اور سنگین واقعہ سامنے آیا ہے۔ اسکول کی رہائشی عمارت میں رات کے وقت تیار کردہ کھانا کھانے کے بعد 18 طالبات کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد طالبات کو زبردست پیٹ میں شدید درد اور بے چینی کی شکایت ہونے لگی۔ طالبات کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر اسکول کے عملے اور انتظامیہ میں شدید افراتفری مچ گئی۔ متاثرہ تمام طالبات کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں کی دیکھ بھال میں ان کا علاج جاری ہے۔ اس المناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی طالبات کے پریشان حال والدین اور رشتہ دار بڑی تعداد میں ہسپتال پہنچ گئے۔ غصے سے بھرے والدین نے اسکول انتظامیہ پر معیاری خوراک فراہم نہ کرنے اور شدید لاپرواہی کا الزام عائد کیا ہے۔ متعلقہ حکام اور پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی تفتیش شروع کر دی ہے اور کھانے کے نمونے لیبارٹری بھیج دیے ہیں۔ کھم ضلع کے وارا ہاؤس کے زیر سیر علاقوں میں پانی کی شدید قلت کے باعث ایک مجبور کسان کی دردناک تصویر سامنے آئی ہے۔ فصل کو سوکھنے سے بچانے کے لیے دھان کے کھیتوں کے لیے فوری طور پر پانی فراہم کرنے کی التجا کرتے ہوئے ایک کسان پولیس افسر کے قدموں میں گر پڑا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ نہروں میں پانی نہ چھوڑے جانے کی وجہ سے ان کی محنت سے بوئی گئی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ اپنی فصلوں کی حالت دیکھ کر مایوس اور پریشان حال کسانوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ موقع پر موجود پولیس افسر نے کسان کو سنبھالا اور متعلقہ محکمے کے حکام سے بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مقامی کسانوں نے حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ ان کے معاشی نقصان کو روکنے کے لیے حوض سے فوری پانی جاری کرے۔ زرعی ماہرین اور عوام نے کسان کی اس بدحالی پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکام کی عدم توجہی کی سخت مذمت کی ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر عام ہونے کے بعد زرعی حلقوں اور عوام میں شدید تشویش اور ہمدردی کی لہر دوڑ گئی ہے۔
నశించాలి